ठीक है। अभी ये नाड़ी के हिसाब से व्हाट इज करंटली गोइंग ऑन इन द पर्सनस लाइफ वी कैन फाइंड आउट। ठीक है। फर्स्ट we will see we will see the slow moving planets first. करेक्ट। इन एनी एनालिसिस पहले स्लो मूविंग प्लैनेट्स ही देखो। ठीक है। अभी यहां पर वेर इज करंटली जुपिटर गोइंग, जुपिटर इज गोइंग इन द साइन कैंसर। करेक्ट। 6,000. करेक्ट, 6,000। It Yes, is sir. going over the moon। करेक्ट। बराबर। और Yes, sir. same Jupiter in the Dashamsha is going over the Saturn, went through the Saturn and came out, which is the sixth lord in the 11th house. So that means very recently, after June, person could have changed the job or something could have happened with the professional setup. सर ये नहीं समझा, दशांशा कहाँ से लाया? ने पहले कंफर्म करने दो कॉलेज। Yeah, what, sir? नहीं, did the person very recently change the job or something positive happened in the person's life in the professional setup? Positive means first he was studying, means MBA. He completed his studies and now he is with his father's business. हाँ, अभी recently start किया। No, he is on first while he was studying, he was on and off taking care of his father's business. But now, as his studies are completed, now he's full time engaged with his father's business. Correct. From when was that? From when was that, I'm asking? Recently, probably 6 months. Okay. Okay. Now he's doing well professionally. He's doing well. That is not a problem. अच्छा अरविंद। Yeah. अरविंद, हाँ सर बोलिए। मैंने क्यों दशांश लिया? सिंपल, यहाँ पर छठे भाव का, अभी अष्टक वर्ग में हम लोग ने सीखा था कि जब अर्थ त्रिकोण का हाउसेस इंपैक्ट होता है तो अर्थ त्रिकोण बोलेगा तो दशांश हुआ ना। ओके ओके ओके। तो यहाँ जुपिटर पर 6 हाउस में है इसलिए बता दिया। हाँ हाँ, समझा? तो यहाँ पर है ना, ये लड़के को, ओके, ये लड़के को एक जॉब भी मिला होगा मगर वो गया नहीं होगा। नहीं, जॉब तो नहीं मिला है because he is not so inclined towards job. He is very much good with his father's business. अच्छा ठीक है, ओके। नाउ एमबीए के टाइम पे प्लेसमेंट मिल सकता है ना सर? ने अगर प्लेसमेंट मिला होगा तो आई डोंट नो। नहीं, Sir, अभी transit pattern- सर रिसेंट में बोलो। रिसेंट में उसका अभी मतलब उन लोग ने प्रॉपर्टी वाइज बहुत अच्छा गेन किया है तो वो सब बात नहीं, रिसेंटली। we'll see each and every Okay. divisional chart. We will see each and every divisional chart later. Okay? ठीक है। सर ट्रांजिट पैटर्न पाइसेस से जा रहा है सेकंड हाउस में, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि वो अपने फैमिली बिजनेस कुछ अपना ऐसा कुछ होगा जिसको वो टेक ओवर किया होगा। जंप मत करो, हम लोग पहले जुपिटर ले रहे हैं। डोंट जंप, जुपिटर का Okay. देखा पहला। ओके, विल गो टू सैटर्न, वी विल गो टू सैटर्न। ओके, ठीक है। अभी यही जुपिटर जो Yes. है, यही जुपिटर जो है नवांश में वो मार्स को ट्राइन किया। करेक्ट। Yes, sir. जब ये जुपिटर कैंसर में आया, इट स्टार्टेड ट्राइनिंग मार्स। था कि नहीं, वो बोलो ना।
मार्स Yes, एंड sir. केतु बोथ सर। हाँ बोथ, करेक्ट करेक्ट। अभी ये जून से, सिंस नवांश में इट इज ascendant lord, he could have been or he will be in some relationship with some boy, for some girl. पल्लवी, Means after June. हाँ अभी जून से। Okay, till date we don't know. Okay, okay. Otherwise, in 2025, when Jupiter was in the sign Gemini, it was trine to the Venus in the Navamsha in the 7th house. So even in 2025, also possible that he would have been in some relationship. Yeah, at that time he was. Correct? Yes. Okay. If he would have been in some relation that time, then this Jupiter, which is forming a trine to both Ketu and Mars here, this Jupiter will break that relationship now. Yeah, it broke also. Correct? Yes. Now, this Saturn, now I'm coming to Saturn. Okay, you want to see now further other divisional charts? Okay, no, later we सर हाँ सर ब्रेक के लिए वीनस को टाइम में आना पड़ेगा ना केतु के साथ। नहीं, नवांश में जब भी लगन, नवांश का जो नेटल चार्ट, नवांश का जो लग्न का अधिपति है, नवांश लग्न का अधिपति है, वो रिलेशनशिप देता है। दशांश का लग्न का अधिपति है, प्रोफेशन देता है। ओके। चतुर्थांश का लग्न का अधिपति है, वो प्रॉपर्टी देता है। ओके। नवांश में वीनस रिलेशनशिप देता है, इफ इट इज अ मेल चार्ट। दशांश में सैटर्न प्रोफेशन अपलिफ्टमेंट देता है। उसका कनेक्शन लग्न लॉर्ड के साथ देखना है दशांश का, मतलब नहीं सैटर्न हुआ। का लग्न लॉर्ड Not अलग as- है, अभी सैटर्न कारक के हिसाब से। ओके। ओके, तो अभी यहाँ पर देखने जाएंगे तो ये सैटर्न को मैं आ रहा हूँ, सैटर्न। ओके, नाउ somebody sets up Saturn. I finished Jupiter now. Saturn, it came into the sign Pisces in the month of March 2025. Okay, तो मार्स को, सैटर्न जो है मून को ट्राइन किया D1 में, हाँ कि नहीं? सर 26 में किया ना अभी। 26 में, सॉरी 26 मार्च 26 में ट्राइन किया। सर एक डाउट है सर, एक पहला मेरे को बताओ, ये बराबर है? मार्च 26 में ट्राइन किया। सर ट्राइन किसको किया? सैटर्न 25 किया। मून को मून को कहाँ सर? D1 में किया। D1 में इन 25 मून को। ओके। नेटल मून को किया ना सर? 4, 8, 12 गिनेंगे। ट्रांजिट सैटर्न ने नेटल मून को ट्राइन किया है मार्च नेटल मून 26 को में। बात कर रहा हूं मैं। Okay, मोक्ष त्रिकोण you are telling 4, 8, 12. अरविंद 2, 6, 10 अरविंद, हाँ सर बोलिए। ये हाँ मार्च 25 में क्या आ रही है? वो सर मीन राशि में देखना, 26। 29 मार्च 2025 को सर Correct. सैटर्न मीन राशि में गया है। करेक्ट, ओके। बराबर, वो जाके वापस आया अरविंद। ओके, यस सर करो। that means moon is मनोकारक, moon is mother। अभी मदर है तो मैं द्वादशांश, अभी मून यहाँ पर 6th हाउस में है, तो मार्च 25 में
मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये पीरियड में he was not in the proper frame of mind. Yes. He was probably cheated by somebody Yes. because moon is cheating. तो ब्रेकअप हुआ ना। वो देखेंगे। He was probably cheated by somebody. Correct? Yes, sir. He was, उसका हेल्थ भी बराबर नहीं था। हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी बोलता हूँ, फिजिकल हेल्थ भी बोलता हूँ। Yeah, both wise he was in depression mood. He was not talking to anyone. Correct, no? Yes, yes. कैसे मैंने पकड़ा? क्योंकि सैटर्न मून का शत्रु है। 7.5 में क्या होता है? सैटर्न मून के ऊपर से जाता तो इम्पैक्ट देता है कि नहीं? वैसे मून ही का शिकार हो जाता है। मैं उसका ट्राइन ले रहा हूं। करेक्ट ना? तो ट्राइन में भी वही होगा जो 7.5 में हंटिंग मून टाइप होता है, वैसे ही ऐसा? नहीं नहीं, ट्राइन में जाएगा तो सेम नक्षत्र में जाएगा ना। ओके इसके लिए नाड़ी में क्या है? सेम नक्षत्र है ना, ट्राइन। ओके राइट, हाँ। करे? क्लियर? यस सर। ओके। नाउ अभी क्या हुआ? ये जो अभी सैटर्न का मैंने खत्म किया। अभी सैटर्न यहाँ पर, सैटर्न अभी दशांश में लेता हूं। इधर 6th हाउस में है ना, 6th हाउस, इधर 6th हाउस है ना। मून को मैंने लिया था ना कनेक्शन सैटर्न का, ट्रांजिट सैटर्न का मार्च में। करेक्ट? यस सर। सिमिलरली ये सैटर्न है ना, एक बार पाइसेस में जाके वापस एक्वेरियस में आके वापस पाइसेस में गया ना। यस सर। उस समय पर भी उसको सेम तकलीफ हुआ, मगर उस समय पर ज्यादा तकलीफ हुआ। क्यों? क्योंकि सैटर्न नेटल चार्ट में रेट्रोग्रेड है। पल्लवी, यस सर। बराबर है? इफ यू रिमेंबर, यस सर। अष्टक वर्ग में हम लोग ने क्या बोला था? रेट्रोग्रेड अगर कोई प्लैनेट रहेगा नेटल चार्ट में और ट्रांजिट में भी Yes. रेट्रो होगा तो द इंपैक्ट विल बी इवन मच मोर। यस। अभी सेम प्रिंसिपल इधर इंपैक्ट रिजल्ट आता है कि नहीं? यस। देखो नवंबर 25 का पीरियड था वो। यस। करेक्ट? हाँ, तभी वो बहुत ही डिप्रेशन में था। मतलब वो किसी से बात ही नहीं करता था करेक्ट करेक्ट और सुनता भी नहीं था किसी की, ना करेक्ट बात करना ना सुनना। करेक्ट। ओके, नाउ what I will do, I will take the same Saturn, put it in the दशांश, because वहां पर जुपिटर है पाइसेस में। ठीक है? अभी वही सैटर्न मार्स के ऊपर नवांश में गया। मार्स मैंने बोला नवांश का लगन का अधिपति है। तभी उस पीरियड में ब्रेक हुआ, या मार्च 25 में या अक्टूबर नवंबर 25। पल्लवी, यस, वही मीन, हाँ यस, वो मीन पीरियड, वही मीन पीरियड पे ब्रेक ऑफ हुआ। समझ गया? यस। अरविंद क्लियर है? एकदम नहीं, बरोबर। अभी ये सैटर्न जो है, हाँ किसको कुछ डाउट है? हाँ सर, ये नवांश में जब भी मार्स केतु मतलब कर्क, पाइसेस या फिर स्कॉर्पियो में कोई भी स्लो मूविंग प्लैनेट आएगा तब वो ब्रेकअप का देगा। इसका मतलब ये हुआ नहीं है। आई एम रिलेटिंग ट्रांजिट प्लैनेट टू द नेटल प्लैनेट एंड रिलेटिंग ट्रांजिट प्लैनेट टू द नेटल प्लैनेट का उसका रिलेशनशिप, नेचुरल रिलेशनशिप, फ्रेंड है के नहीं। ओके। तो व्हेनेवर वीनस विल कम इन कैंसर नवांश में, तभी भी वो ब्रेकअप देगा कि नहीं देगा? क्योंकि वीनस केतु के साथ जॉइंट होता है ट्राइन में। वही मैं बताऊं, वीनस और मून एनिमी है, वीनस और सन एनिमी है, मेरकुरी मून एनिमी है। समझा? मून को कोई हाँ, एनिमी नहीं है, बट मेरकुरी enemy कंसिडर्स नहीं है। मून एज एनिमी। Moon as वीनस enemy. के बोथ मून और सन एनिमी हैं। तो वीनस जब Correct. इधर जाएगा वो पीरियड में उसको ब्रेकअप देगा। देगा, correct.
समझा? किधर सर, D9 में? किधर भी, हाँ। किधर भी, ओके। किधर भी। ओके, अभी यहाँ पर ए सैटर्न जो दशांश में है जुपिटर के ऊपर से अराउंड मार्च अप्रैल 26 में गया। ओके, एक बार जाके आया, उसके पहले भी गया था वो 25 में जाके आया, बताता हूँ कभी है, 2 पीरियड में। ओके, सैटर्न रेट्रो के देखो 25 में, जब मार्च 25 में सैटर्न जो है ना, ये जुपिटर कौन सा नक्षत्र में है दशांश में? उत्तर भाद्र में, बराबर है, UBH लिखा है देखो। हम्म। सैटर्न किधर है, जुपिटर किधर है, सॉरी जुपिटर किधर है, उत्तर भाद्रपदा में है ना, देखो 7th हाउस। उत्तर हाँ, 7th भाद्रपदा में हाउस। ना, हाँ कि नहीं? यस Yes, सर। sir. ये सैटर्न Yes, sir. जुपिटर के ऊपर से गया, उत्तर भाद्रपदा सैटर्न का नक्षत्र है। तो समवेयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल में 25 में ही जॉइंड हिज फादर्स बिजनेस, और प्रोफेशन में उसको राइज मिला। यस, करेक्ट? यस सर। ओके, अभी नाउ यू टेक यस सर। राहु केतु। ओके, नाउ राहु। सर लेकिन दशांश में मंगल और केतु भी तो है ट्राइन में सैटर्न के। हाँ, पहला किसको मिलता है, पहला किसको मिलता है, पहला किसको मिलता है ट्राइन में? मार्स को ना। कैसे भैया, कैसे भैया? Can't see the degrees, sir. जुपिटर 12 डिग्री में यस, है। जुपिटर इज 12 डिग्री है। हाँ, पहला जुपिटर को मिलेगा। इसके लिए अभी बताता हूं, दिस क्वेश्चन इज राइट एज ऑफ नाउ, बिकॉज सैटर्न वहां से जुपिटर के पास निकलने के बाद उसको, अभी सैटर्न इज ट्राइनिंग मार्स हियर, दैट मींस करंटली ही इज नॉट लाइकिंग द जॉब व्हिच इज डूइंग विद हिज फादर, देयर इज सम फ्रिक्शन। वो तो ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है। जब अभी ज्यादा है, he doesn't want to stay with his father's business. Okay, but means it is not known though to me because he is only doing the work. Yeah, but उसको मजा नहीं आ रहा है, he is facing lot of problems in this professional setup now. Okay. But from July onwards, when Saturn will become, July end say, when Saturn will become retrograde, it will go away from the Mars and will come to catch up with Jupiter in the dasha. Jupiter वापस Okay? चेंज होगा। हाँ, वापस चेंज। Okay. Now I will take Rahu Ketu. Where is Ketu? Now Ketu is in 6 degrees in the sign Leo. Correct? Yes, sir. Yes, बराबर? yes sir. ओके, तो ये केतु इधर किसको ट्राइन करता है क्या? पहला केतु ने इसको सन को ट्राइन किया, केतु सन को ट्राइन किया। तो लास्ट ईयर में जब केतु यहां पर आया मई 25 में अराउंड, इस सन 7th हाउस में है, सिंस ही इज इन फादर्स बिजनेस, there was some problem with the government agencies because sun in the 7th house is bank, IT, scrutiny, इसमें सब प्रॉब्लम आया। पल्लवी, हाँ, मतलब उनका जो एक असाइनमेंट, गवर्नमेंट का एक असाइनमेंट था ना डाई बनाने का, तो उसमें some problem with die making, but it was resolved afterwards. but it was with whom? Was a bank, state गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट। हाँ, समझ गया, क्योंकि sun in the 7th house will give you problem in the with the government agencies, banks, government, IT, ED,
ओके, उसका सब प्रॉब्लम समझा। अभी Yes. यहां पर नाउ इफ यू टेक राहु, नाउ केतु, इज इट इंपैक्टिंग एनी अदर प्लैनेट इन द लियो और ट्राइन में? नेटल केतु। वो तो करके गया ना, पहला करके गया, पहला किया हाँ तो किया तो केतु, हाँ केतु थर्ड हाउस में है, तो थर्ड siblings. हाउस में है तो उसको शोल्डर्स, आर्म्स, वहां पर सब उसको प्रॉब्लम दिया रहेगा। यस यस, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, मतलब थोड़ा, वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। हाँ, फ्रोजन शोल्डर, हाँ हाँ हाँ, राइट। क्लियर? राइट साइड में हुआ। यस फ्रोजन शोल्डर सर, फ्रोजन शोल्डर, हाँ, बराबर है, क्लियर है, फ्रोजन शोल्डर, यस। क्लियर है, ओके। नाउ इफ यू टेक राहु, ओके, राहु, राहु was creating problem with Saturn and Jupiter because राहु सतविषा नक्षत्र में था और सैटर्न सतविषा में है और जुपिटर स्वाति में है, जिसका अधिपति राहु है। एक बात समझ लो, ट्रांजिट में, किसी भी ट्रांजिट में, नाड़ी ट्रांजिट हो, किसी भी ट्रांजिट हो, जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है उसके ऊपर से राहु या केतु जाता है तो वो प्रॉब्लम देगा, मगर वो प्रॉब्लम से उसको आसानी से बाहर आएगा, क्योंकि क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है क्योंकि सैटर्न रेट्रो प्लैनेट इज इक्वल टू राहु केतु, बोथ विल जेल विथ ईच अदर, Okay. both are of the same nature. So we have to see friendship enmity of planet with Rahu Ketu also, कि वो नहीं देखना। ये देखना है। प्रिंसिपल वापस से बोलिए सर, एक बार वापस से बोलिए प्रिंसिपल सर। रेट्रो के ऊपर में से अगर कोई प्लैनेट जाएगा तो रेट्रो प्लैनेट के ऊपर से अगर कोई प्लैनेट गया तो वो प्रॉब्लम देगा, मगर वो प्रॉब्लम से आसानी से बाहर आएगा, समझा? सर कोई भी प्लैनेट के कोई भी स्पेशली राहु प्लैनेट, केतु? कोई भी प्लैनेट, राहु केतु का ट्रांजिट में बता रहा हूं। Rahu in transit is going over Saturn, no? Had been over Saturn. Now it has come out of Saturn. Rahu, Sadvisha Nakshatra. Correct. Why are you all keeping quiet? Yes sir, yes. Yes, sir. Yes, sir. So Saturn is retrograde there. Rahu is also retro, naturally retro. So when Rahu Ketu goes over any natal retro planets, then it will give some problem, but that problem he will be able to pass away with very easily. So Rahu going over Saturn gave him problem in the professional setup, but he was able to overcome that. So it's like a Neech Bhang or a Vipreet. Nahin, not Neech Bhang. It is of the same nature. Saturn retrograde or any planet retrograde is equal to the same nature of Rahu Ketu, no, which is retrograde. Okay, sir. मतलब दो की बुद्धि बराबर काम नहीं करती। Birds of the same feather flock together. समझ गया अभी? Yes, yes. दोनों का सेम नेचर एक है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। क्लियर? सर अगर नेटल चार्ट में वही प्लैनेट रेट्रो भी है और राहु का फ्रेंड भी है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ना? नहीं, राहु का फ्रेंड का सवाल है। ट्रांजिट में मोस्ट ऑफ द टाइम राहु प्रॉब्लम देता है, समझ गया? मोस्ट ऑफ द Means sir, you are telling that with any मतलब a planet is not retro, and if Rahu is transiting over that planet, then it gives problem. But if the planet itself is a retro, I will stop you. It will give you problem, and he will not be able to overcome with that problem.
Okay, okay. And But if the planet itself is a retro and Rahu also is retro, so it will can easily get away from the problem. Rahu is also retro. Rahu is anyway retro. Sorry, both are retro then. Then problem will be there, but he'll be able to come out with the problem. Of the problem. Okay. Sir, one So problem. what if that planet was stationary There is and no stationary. Rahu? There is no stationary concept in transit. Okay. सर अगर Sir, natal Stationary, chart में एक minute. Stationary concept in transit is only it will. Natal planet is stationary तो एक मिनट. Natal planet Birth का के time stationary पे? का एक मिनट. Natal planet का stationary होगा तो वो अभी लग्न में stationary है क्या अभी देखना पड़ेगा. Okay. If it is there, then that Saturn as the 12th lord is there in the first house. Correct. Hmm. Then it will give you as a 12th lord, it will give him some kind of a problem with respect to the 12th house. 12th lord in the first house. What all the probability are there that he can settle abroad? Okay, there will be some problem with the health. So if it is stationary, then there will be some problem with the health which is of a long lasting nature. Stationary means long lasting. Okay. Something सर which will leave some birth mark. एक क्लैरिफिकेशन था सर कि वी ऑलवेज इंसिस्ट ऑन द ट्रू राहु, करेक्ट? ट्रू राहु तो sometimes it becomes direct also, and twice in a year it becomes stationary also for nearly 10 to 12 days. अगर उस समय किसी नेटिव का बर्थ हुआ हो बाय चांस, या तो रेट्रो नहीं हो, डायरेक्ट हो राहु, या फिर वो स्टेशनरी पीरियड हो, उसके अंदर में 10-12 दिन में अगर किसी का जन्म हुआ हो, तो इट गिव्स इम्पैक्ट. या दैट्स व्हाट आई एम. स्टेशनरी जो होता है ना, कभी स्टेशनरी होता है, कभी डायरेक्ट भी होता है. जब स्टेशनरी होता है ना, वो 2-2 महीने के लिए स्टेशनरी होता है. नॉर्मल 2-2 महीने के लिए होता है, 15 दिन नहीं, 2-2 महीने के लिए. ओके, तो चेक करो. 2-2 महीने के लिए? हाँ, 2-3 महीने के लिए भी कभी कभी होता है वो. ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग रहता है. और ऐसे भी अगर डायरेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट में अगर किसी का बर्थ होगा तो वो इट मेक्स अ डिफरेंस इन द प्रेडिक्शंस. Depends upon the speed of that Rahu Ketu in the true motion. ओके. सर इसका शादी कब होगा? एक मिनट बताता हूँ, पहले खत्म करने दो, इनका डाउट्स क्लियर. सर मतलब अगर नेटल प्लैनेट में प्लैनेट डायरेक्ट है, ये रेट्रो नहीं है और राहु आएगा तो प्रॉब्लम से नहीं निकलेगा. अगर रेट्रो प्लैनेट के ऊपर राहु आता है तो प्रॉब्लम से निकल जाता है. हाँ, करेक्ट. हाँ. Any doubt? Any doubt? No, sir. Thank you. Okay. Now the question is, now same way you take Rahu Ketu in the other divisional chart also. Okay, same way. समझ गया? मैं उसमें अभी जाता नहीं. ठीक है. अभी शादी कब हो? शादी कभी कभी होगा. D1 चार्ट भी देखने का, D9 चार्ट भी. ओके, यहाँ पर सूर्य जो है 7th हाउस में. सूर्य 7th हाउस में. ओके, यहाँ पर सूर्य अपने खुद के घर में होने के बावजूद सूर्य वहां पर स्ट्रांग नहीं है. क्यों? दिग्बल नहीं है. नहीं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का सर वो सातवां ये है, वहाँ सूर्य डेबिलिटेड होता है. नहीं, वो सैटर्न का दृष्टि है. दैट इज सैटर्न. somebody said सूर्य डेबिलिट होता है, वो लाल किताब के हिसाब से बता रही. Sir, it's with सैटर्न Ketu as प्रेशर भी तो दे रहा है सर सूर्य पे. नहीं, सूर्य पे Sir, it is expected by Saturn retro. Sir, it has Ketu with it in Nadi. Ketu in trine. somebody said Yes, Ketu in trine. Yes sir. same in the same nakshatra. Yes. Okay, समझ गया? तो Okay. सन इधर वीक है,
ठीक है, सन वीक, बट एनीवे Sir, but we can say now that I lost you, Mrinalini. sir, I was saying that Ketu is there, but there'll be delay, but not denial, na? That's what I'm saying. I'm coming to that. Okay. So this sun is also aspected by Saturn. Okay. So one thing is for clear: this marriage is a delayed marriage. It's a delayed marriage. Okay. Delayed marriage. Okay, because any planet that is aspected by Saturn, it will cause a delay. Be very clear about that. Yes. Be very clear about that. कौन सा भी होने दो. यहाँ पर मार्स देखो, मार्स is नाडी वाइज मार्स is connected with Saturn. Correct? तो इसका मतलब ये है yes. कि इसका थर्ड हाउस का लॉर्ड है मार्स. Yes, sir. ये हो सकता है कि इसके बाद वाला एक बच्चा हो गया रहेगा, इसका माँ का कोख से निकल गया होगा शायद. I am not aware. सर ये वहाँ केतु बैठा है इसलिए आपने ये लॉजिक बताया. नहीं, पहला बताया ना, सैटर्न मार्स कनेक्टेड है. ओके. उसका मैं कनेक्ट, ठीक है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है. ओके, नाउ डीलेड मैरिज है, बट ये सन के 7th हाउस का लॉर्ड के ऊपर से अभी जुपिटर जाएगा नेक्स्ट ईयर. करेक्ट? Sir, repeat. वेयर इज जुपिटर नाउ? Cancer. Kark. Kark Rashi. अभी लियो में जाएगा तो इट विल कम ओवर सन. हाँ कि नहीं ना? Yes. Yeah. So sun is the 7th house lord. Correct? Yes, sir. Yes, तो sir. उसका मतलब यह है जब जुपिटर यहाँ पर आएगा लियो साइन में, पूर्व फल्गुनी नक्षत्र में आएगा तो उसका शादी होगा. That Okay, means sir. next year, sir. नेक्स्ट ईयर. हो ही but जाए. Saturn तो 12th में होगा ना? हाँ, Sir, but Saturn will be transiting the Pisces sign at that time when Jupiter comes to Leo. so So Navamsh में it becomes in the 12th house. नहीं, वो see then Saturn would have already crossed that Mars का 2 degree in the Navamsh, no? हाँ, that it has crossed. Yes. हाँ, तो impact नहीं होगा ना उसका. Okay. Okay. Now you will ask me, नवांश में जब जुपिटर जब मिथुन में गया, मिथुन में गया तो वीनस को ट्राइन किया उसने. कि नहीं? हाँ सर. Yes, sir. Yes. क्वेश्चन तो आना पड़ेगा ना तुम्हारा दिमाग में. ये नहीं, लेकिन सैटर्न के साथ ट्राइन है ना सर, नहीं होगा सुनो वो ना, टाइम पे. सुनो. ओके, वो 15 डिग्री में है ना सैटर्न, सॉरी वीनस नवांश में. हाँ कि नहीं? सैटर्न भी 16 डिग्री पे Yes, ही sir. है. नहीं, Yes, sir, वीनस 15 नवांश है. में 15 डिग्री में है कि यस. हाँ, 15 डिग्री Yes, में sir, है. है कि नहीं? यस सर. Yes, sir. बराबर है. तभी वो जब भी उधर गया था तो वहां पर ये वीनस का ट्राइन में इधर कौन आया था? राहु वॉज अप्रोचिंग, नो? राहु वॉज देयर, नो? जब भी आया तो Yes. Yes. Sir, you are talking about transit Rahu, na? या Yes, it was there, sir. करेक्ट, नो? Yes, sir. बराबर. ओके, सो राहु वॉज देयर, सो दैट मीन्स 25 में शादी नहीं हुआ, उसका कुछ गलत रिलेशनशिप.
गलत तो नहीं, लेकिन रिलेशनशिप तो था। गलत बोलेगा तो वो ब्रेक हुआ वो रिलेशनशिप, बोलो ऐसा भी बोलो। हाँ हाँ रिलेशनशिप दिया मगर ब्रेक हुआ, हाँ हाँ हाँ, बराबर ना, क्योंकि राहु ने ब्रेक किया उसको। यस, ओके। अभी लेकिन हाँ बोलो। सर एक और क्वेरी है, नवमांश एक मिनट, में पल्लवी वो है ना, पल्लवी को होने दो। पल्लवी व्हाट हैपेंड, टेल मी। हाँ मतलब वो एकदम आगे बढ़ चुका था मैरिज का उसमें, लेकिन फिर घर वालों ने ना बोला कि ये नहीं होएगा ऐसा। ठीक है, ओके। हाँ बोलो, अभी कौन दूसरा? किसके किसके घर वालों ने बोला, लड़की के लड़के के? लड़का का ही होगा लड़के ना? लड़के लड़के का ही होगा, लड़का। हाँ, वाह। सर नवमांश में जब जेमिनी में आया ना जुपिटर, तब वो सैटर्न और मर्क्यूरी दोनों के साथ ट्राइन होता है ना नवमांश में। सर वो तभी मर्क्यूरी और सैटर्न दोनों के साथ ट्राइन होता है, तो डज दिस वीनस का नहीं मीन कि देखा ना मैंने खाली वीनस का देखा ना। हाँ, लेकिन दोनों प्लैनेट लेंगे ना हम ट्राइन में भी। क्यों मैं खाली आई रिलेटेड ओनली विद द मैरिज। हाँ सर, लेकिन मल्टीपल रिलेशन मर्क्यूरी नहीं दिखाएगा। नहीं, सी यू कैन कनेक्ट विद एनी चार्ट, एनी प्लैनेट, ओके, बट पॉइंट आई एम मेकिंग इज, मैं अभी शादी के मामले में बताया, मैं शादी के लिए फॉर अ मेल वीनस लेगा मैं। करेक्ट। But sir, I didn't get that point that you mentioned that Rahu breaks the relationship. How means, for what reason? Rahu will not break the relationship. Rahu will give the relationship with another community or another religion or any other than the caste, whatever. Yeah. That's true that the girl was of different religion. Yeah. Correct. हाँ. Which religion was it? Means मारवाड़ी थे, मारवाड़ी. Okay. Oh. समझ में आया क्या? So, but overall only because 9th house Rahu is there. So he himself will have different habits now. No. His outer style will be very persona. His mindset will be of a very different type from his community. No. See, I'll tell you. How do you... first, let me finish this first. Okay, let me finish this first. Now, Jupiter will come to the sign Leo. It will go over the sun. Correct? Yes, sir. And the same yes. sun is there in the 5th house in the Navamsha. Yes. So, Yes, sir. marriage will happen, but again, this marriage will be with a girl which will be approved by the family. Yeah. Correct. So why do you say approved by the family? Because it's Because actually Jupiter and Sun are friends. Yes. fine, but fifth house is affairs, right? Yeah, that's what I'm saying. Affair. He will get into an affair with another girl from an affluent family, probably having some business connection with his own business connection के साथ कुछ होगा, and that will be approved by the boy's family. Okay. Clear? Okay, sir. 27 में होगा वो शायद. कभी आएगा 27 में? It will be somewhere in the end of last quarter of 27. मतलब नवंबर दिसंबर. Last quarter, yeah. October, November, December. Correct? वो तो सर जब ही होगा तब मैं बोल दूंगी आपको. नहीं, बोलने का नहीं, हम लोग को बुला खाना करने को सबको. श्योर. खाली हम नहीं, पूरा क्लास को बुला. Yes, I would. In fact, they would be very happy to invite all of us. 4 दिन. Sir, just one 4 दिन भूखा रहेगा मैं. Yeah, of course, sir, of course. सर एक क्वेरी था
Sir, Sir, one Sundar sir. question. Sir, in Navamsh, seventh house has Libra sign, and Libra is a Dagd Rashi. So can we see anything from there? That is what I'm saying. No, Dakta Rashi, when you see 7th house, that means there is some relationship which will break. Which will break. Okay, that is how. Okay. See, another rule I will tell you. Another rule. Whenever 7th house Lord, 7th house Lord or 7th house is connected with the 9th house or the 11th house, then there will be 2 marriages or marriage will break. So sorry, seventh house Lord is connected to ninth house. 9th or 11th. Then there will be 2 marriages. समझ में आया? But sir, if marriage will not break, but prior if a relationship breaks, can it be considered? No. The actual marriage is 7th. Live-in Okay. live-in relationship is 3rd house. 3-7 is live-in relationship. 3-7. 3-7-8 is live-in relationship, but with a secret relationship. सर ये कंडीशन D1 का बताया D9 का बताया आपने? किधर भी? सर ये सूत्र दोबारा बताएंगे? 7th हाउस का कनेक्शन अगर 9th हाउस से है तो एक बार मैरिज होने से टूटेगा या मैरिज आते आते टूट जाएगा, फाइनल हो जाएगा, टूटेगा. सर क्यों लेके Yes. This happened, sir. So which Marriage. house is? Third house and? नहीं 3rd हाउस नहीं, 7th हाउस इधर क्या है, सन है ना. हाँ. किसका नक्षत्र में है? किसका नक्षत्र में है? शुक्र के. एक मिनट सर. शुक्र का है ना. शुक्र के. पूर्व फाल्गुनी. शुक्र के नक्षत्र पूर्व का. फाल्गुनी. शुक्र किधर है? 9th हाउस. तो कनेक्शन है ना, 9th हाउस कनेक्शन आया ना. यस सर. बट सर ये सारे कुंडलियों पे ये रूल अप्लाई होगा? नहीं. जुपिटर का कनेक्शन होएगा तो नहीं होगा. सर एक चीज पूछना था, अभी जैसे इसका मार्स, सन और इसका जुपिटर तीनों एग्जैक्ट 16 डिग्री के ऊपर में ही है. तो अगर ऐसे कॉमन अगर ऐसे सिमिलर डिग्री रहते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ इम्पैक्ट दिस कैन गिव? बताता हूँ. देखो सर जुपिटर का आपने क्यों मना किया? क्या? इवन द सैटर्न इज नियरली 15 डिग्री. आई विल कम टू दैट. नहीं आई विल कम टू दैट. कुछ देखो वीनस है ना 1 डिग्री में है. वीनस 1 डिग्री में है ना, हाँ कि नहीं बोलो, मैं बोलते समय Yes. Yes sir. वीनस पहला किसको मिलता है? वीनस पहला किसको मिलता है? एक मिनट सर. 1 मिनट क्या 10 मिनट लो यार. वीनस पहला सैटर्न को मिलता है. सैटर्न को मिलेगा. यस. Yes sir. फिर बाद में जुपिटर को मिलता है. यस. यस सर. किसका तो भी डिस्टर्बेंस आ रहा है. सर किसी का गेस्ट आया है. कुशल. मेरा नहीं है. वीनस पहला सैटर्न को मिलता है, फिर जुपिटर को मिलता है, फिर मार्स को मिलता है, फिर राहु को मिलता है. तो वीनस Yes. सैटर्न को मिलने में प्रॉब्लम नहीं है. फ्रेंड है वो. फ्रेंड है मगर रेट्रो है. हाँ. है? मगर सैटर्न का बाद वो इमीडिएटली मार्स को और जुपिटर को मिलता है. जुपिटर को पहला जुपिटर तो फिर एनिमी. उधर मार्स तो एनिमी आ जुपिटर गया. बाद में. मार्स एनिमी आ गया. यस. तो जुपिटर भी. जुपिटर एनिमी नहीं है, जुपिटर बेनिफिक है. ओके. तो यहाँ पर क्या है ना, मार्स वीनस सैटर्न को मिलके मार्स को मिलने से एक बार टूटेगा,
मगर बाद में जुपिटर है करके बच गया। फिर राहु से मिलेगा तब सर, वापस राहु से मिलेगा फिर। वापस राहु से मिलेगा वो बराबर है, बट जुपिटर को मिलके जुपिटर को बेनिफिट को मिल रहा है ना, फिर बाद में राहु को मिलता है ना। जी तो इसके लिए जब वीनस का जब प्रोग्रेशन करोगे, ईयरली प्रोग्रेशन, वीनस का क्या प्रोग्रेशन बताया था मैंने? वीनस के लिए ईयरली प्रोग्रेशन बताया था ना। खाली जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु के लिए मैंने कैसा प्रोग्रेशन बताया था? भूल गया? Sorry, sir, what? I asked you what was the progression that I taught you with respect to Jupiter, Rahu, Ketu, Saturn. Based So on one degree, second. no? Jupiter 12 years. Based on Jupiter degree, 12 years no? का Saturn. Based on degree, Based on degree. correct? Yeah. No? Yes. Yeah. What was taught for Venus, Moon, Nadi Mercury? That is yearly progression. उसमें there is no Yes, degree sir. wise. Correct? Yes. Yes, sir. Yes. Correct, no? Sir, I So- can't recollect. You check your books now. Sir, yes, sir, definitely. Okay. Now, So Venus अगले साल अभी देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल देयर इज 5 minutes टाइम। ओके, नाउ मैरिज का समझ गया पल्लवी कैसा निकालने का? Yes. जुपिटर जब लियो में आएगा तो शादी होगा, और वो भी लव मैरिज ही होगा, Okay. क्योंकि नवांश में Okay. सन को मिलता है 5th हाउस। ओके, Okay, sir. अभी देखो प्रॉपर्टी को रिलेटेड ही विल हैव प्रॉब्लम इन हिज फैमिली। ओके, I think there is no problem in wise, property wise. I will tell you. Okay, Okay. how? ये मार्स है ना, इज प्रॉपर्टी, राइट? करेक्ट? Yes. मार्स इज प्रॉपर्टी ना? Yes. Yes, sir. ओके, नाउ ये जो मार्स है 16 डिग्री में है। मार्स 16 डिग्री में है, 16.59 17 डिग्रीज में है। करेक्ट? Yes, sir. वो सैटर्न को ट्राइन करता है, जुपिटर को ट्राइन करता है, राहु को ट्राइन करता है। Yes. Okay. Now, what is his Venus age now? horizon. What is his age now? His age is 30, 30, his age is 32. 33 running. 33 running, Yeah. 32 Hmm. completed. 32 running. 32 running. 32 running. Okay. 32 running. हाँ एंड में 32 running. Okay. तो ये मार्स अभी ये 24 इयर्स हो गया। मार्स इज इधर है तो इधर 24 खत्म होएगा ना, टॉरस में 24 खत्म होगा ना, टॉरस में 24 खत्म होगा कि नहीं? यस सर किसी 24 टॉरस में ही खत्म होगा सर। हाँ, सबको पता है क्या? सब जन कोई हाँ नहीं बोलता। सर वो सर नोट नहीं सर, बता सर दो, ये नोट पता है। बता दो सब समझ आ जाएगा। हर साल एक साल चलेगा ना, तो हाँ। 24वां साल टॉरस में खत्म होगा, हाँ, इस तरीके से 36वां साल फिर टॉरस में खत्म होगा, इस तरीके से बता। Yes. 24 20 36 सब एक ही है ना, टॉरस में खत्म होगा। Yes, sir. हाँ 12 24 36। हाँ, Yes. अभी 32 ईयर रनिंग है ना, 32 ईयर रनिंग है ना, बराबर? जी सर। Yes, yes. 25th ईयर में Pallavi confirm this, huh? When he was 25 Yes, years sir. old, that point of time, there was some problem in the property in his family, could be with respect to the office property, or could be with buying and selling, or something of that sort. With neighbors. Yes, yes. There was a problem. Yes, I recollect.
Tell me what the problem. Tell us what the problem. Problem was that his neighbor also wanted the same property which they were buying, but altogether they got that property. Okay. Similarly, 24, 25, 26, 26th year में Cheating. Mars came in contact with the natal moon. Progression. Correct? Yes, sir. So In 4th house. yes, 26th year में probably there was some money they would have booked for the flat or something, which the builder would have cheated, or they would have shifted the house. Yeah, they have shifted the house recently. नहीं, 26th year. जब वो 26 साल का 26 नहीं तभी नहीं. अरे है No. मदर को कुछ प्रॉब्लम था 26 मदर को बुखार बिकार आया रहेगा, कुछ हो गया रहेगा, वो छोड़ो, मैं प्रॉपर्टी का देख रहा हूँ. नहीं they didn't shifted their house. Yeah, something they would have booked some property somewhere. हाँ, property they bought a property in Baroda. 26th year में Yeah. उसमें कुछ चीटिंग बीटिंग हो गया रहेगा, but they would have overcome that. Yeah, there was some problem, but it was Correct? it was overcome. Yeah. Okay. 27th year में they bought a property in some prime area. हाँ, मतलब जहाँ रह रहे एक ही साल में उन्होंने जहाँ अभी रह रहे ना वही ऊपर 7th फ्लोर में भी प्रॉपर्टी बाय किया. When he was 27 years old. Yeah. Okay. मतलब वो बड़ौदा एंड दिस प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली बाय किया था. Okay. Or when the boy was 28 year old, that time also there was some land they would have probably land. Okay, they would have bought or some other लैंड. हाँ, या वो गांव में उन्होंने लैंड लिया था लिया है बराबर ना 29th year में. हाँ. When the boy was 30 years old, that time there was some problem with the property. प्रॉब्लम विद प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते, उन्होंने प्रॉपर्टी ही बाय की थी कोविड में. There was a problem. Okay. आ, बाय किया, Okay. बताता हूँ. बाय किया, फिर बाद में वहां पर कुछ इश्यू हुआ, उसके बाद एडिशनल पैसा देना पड़ा या समथिंग कुछ हुआ, फिर बाद में वो हाँ. हुआ. या हाँ, बराबर. राइट. मैं क्यों बोले एडिशनल पैसा देना प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो मार्स जो है प्रोग्रेशन में लिब्रा में गया. पहला वीनस को मिला, फिर वो मार्स एनिमी सैटर्न को मिला, फिर बाद में मार्स को मिला, फिर बाद में जुपिटर को. सो देयर वाज अ प्रॉब्लम. इनिशियली बुक करने को गया, फिर बाद में प्रॉब्लम आया, फिर बाद में वो पूछा रहेगा मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए, ये बुक में नहीं होगा, फिर ज्यादा पैसा दिया, फिर बाद में सेटल. Yes. Recently they bought 4 property. Correct. Clear? Any doubt? सर आप Yes. आप 1 year 1 house पकड़ रहे हैं ना मार्स का. हाँ, मार्स का, वीनस का, मून का, सब 1 year 1 house. तो आप ये अभी प्रोग्रेशन मार्स का देख रहे थे ना. हाँ. तो 30th ईयर में 5 6 7 8 9 10 6th हाउस में आता है ना मार्स. कैसे यार? इधर 24, सर 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये वाला ईयर लिब्रा 29, 30 इधर आया. 30 is will be this year Scorpio. 29, 30 is this year Libra.
24 31st स्कॉर्पियो में 25 is 24-25, that is September 24. सितंबर अक्टूबर ना, सितंबर से लेके चालू होगा ना उसका बर्थ. 24 is here. Yes. 25, 26, 27, 28, 29. So 29, 30, 31. अभी 30-31 में भी उसने शिफ्टिंग कुछ किया रहेगा या कुछ तो भी प्रॉपर्टी लेने को गया रहेगा. Yeah, they shifted. No, they shifted. Okay. क्योंकि वो मार्स जो है मून को जाके ट्राइन किया प्रोग्रेशन. ओके, समझ गया. यस सर. सर आपने वो जुपिटर का नहीं बताया कि जुपिटर के केस में 7, 9, 11 कनेक्ट होगा तो नहीं होगा. मैं जुपिटर का गया ही नहीं, मैं खाली प्रोग्रेशन बता रहा हूँ मार्स को लेके. नहीं अब वो नेटल मार्स से एक साल आगे जा रहा है ना सर. हाँ हाँ सर, समझ गया सर. नहीं वो सूत्र बताया था ना आपने, वो पूछ रहा था. हाँ बराबर. यस. ठीक है. सर अगर मार्स, वीनस और मून को 1 ईयर 1 हाउस लेंगे तो जुपिटर को कितना ले रहे हैं अब? मैं बताया ना, जुपिटर, राहु, केतु, सैटर्न का मैंने उसका अलग प्रोग्रेशन है, मैंने बताया था ना. चेक करो नोट्स ना, डिग्री वाइज. सब हम उसमें ट्रांजिट भी डालेंगे ना साथ में. ट्रांजिट बात अलग है, मैं प्रोग्रेशन का नहीं बताया. ट्रांजिट इज डिफरेंट, आई एम टॉकिंग ऑफ प्रोग्रेशन. सर आप वो मेजर प्रोग्रेशन और माइनर प्रोग्रेशन जो बोल रहे थे वही ना. हाँ. मेजर प्रोग्रेशन 12 years and 30 years. 12 years, 30 years, 19 30 years, years. 18 Okay. years, 18 years बताया था ना मैंने डिग्री वाइज निकालने का. भूलो यस मत. सर, यस सर. ये ओके सब समझो. ये यस सब सर. एग्जाम में आएगा, ये सब भूलो मत प्लीज. सर एक बार रिपीट करा दें. सर एक can we चेक करवा देना. So can we revise the progressions ठीक है, next सर class? सभी Yes, sir, it would be appreciated. नेक्स्ट. सर सभी लेकिन confused मैन्युअल हैं. कराना सर, आप सॉफ्टवेयर से करवाते ऐसे नहीं, हाथ से करवाना. हाँ ठीक है. हाँ सर बोर्ड पे करा देना. हाँ ठीक है. Yes.